Yes, so as we have discussed in the last lecture, in this lecture we are going to do some examples, some problems. So it is given that find the range, limit points, lim sup, lim inf, nature of the following sequences. So I have made this type of table. You can make it in your book. You can do it in combined pages. दोनों पेज में एक पूरा टेबल बना लेना. Okay. So let us start with some simple sequence. Say let us start with constant sequence. Say xn is equal to c for all n. Right. I will write only expression of xn. See, if it is a constant sequence, we know that what is its range set? Its range set will be singleton set. It has only one limit point, that is c. एक ही लिमिट पॉइंट है तो लिम सुप में हमने क्या किया था, सुप्रीमम ऑफ एल, जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो लिम सुप आएगा, जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है वो लिम इन्फ आएगा. एक्चुअली एक कॉलम ऐड करनी चाहिए, लिमिट इफ एग्जिस्ट, अथवा तो इफ इट इज कन्वर्जेंट. राइट. So what is the nature of this sequence? We know that it is convergent, and what is its limit? Its limit is c. Right. It has only one limit point. How we know that it is convergent? Because it is a bounded sequence having unique limit point. Right. In the last lecture we have seen that chart. If a sequence is bounded and having unique limit point, then it will be convergent. And if it is convergent, its limit will be the only limit point. Right. Let us take one more simple example. Xn is equal to minus 1 raised to n, n belongs to n. So we know that range set of this sequence is minus 1 1. What are the limit points of this sequence? It has two limit points. We have seen this also. So L is equal to minus 1 1. What is lim sup? Lim sup is the largest limit point, that is 1. Supremum of L, supremum of this set. Lim inf is infimum of this set. Nature. See, we can say its range set is bounded, means sequence is bounded and it has more than one limit point. A bounded sequence having more than one limit point is oscillating infinitely. So this is, oscillating finitely or finitely oscillating, right? This is its nature, and limit doesn't exist because it is not convergent, right? Let us take number 3. Say xn is equal to, let me write here expression. I am not writing xn is equal to minus 1 raised to n minus 1 upon n factorial. Minus 1 raised to n minus 1 upon n factorial. What will be its range set if you take, see, whenever n is odd, n minus 1 will be even. So odd term will be positive, even terms will be negative. What will be range set if you take n is equal to 1, minus 1 raised to 0, that is 1, 1 upon 1 factorial is 1. If you take n is equal to 2, so it will be minus 1 by 2 factorial, right? Then 1 by 3 factorial, then minus 1 by 4 factorial, and so on up to infinity. You can say that, you can see this is the range set of this sequence. Okay, what are the limit points? You can see as n tends to infinity it will go to 0, right? Yes, it means it is convergent. We know that if we take limit n tends to infinity, डिनोमिनेटर जो इनफाइनाइट होगा, ऊपर तो 1 और माइनस 1, आइदर 1 और माइनस 1 ही आएगा. यू कैन टेक मॉड्यूलस एंड यू कैन सी. सो इट इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो इट हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट विच इज़ 0. सो लिम सुप भी 0, लिम इन्फ भी 0. सी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के केस में लिम सुप, लिम इन्फ एंड लिमिट एवरीथिंग विल बी सेम, convergent. And what are the limit points? Limit if exists, yes, it is 0, right? इसके लिमिट में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो यू कैन टेक मॉड्यूलस एंड यूज सैंडविच थ्योरम. से लेट मी राइट इट हियर. 0 इज लेस और इक्वल मॉड्यूलस ऑफ माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल. ऐसा होगा ना, मॉड्यूलस लिया तो पॉजिटिव तो होगा ही. यस, एंड this is equal to or less or equal, you can say 1 upon n factorial. If you take n tends to infinity, this will go to 0, this will go to 0, so this has to be 0 by sandwich theorem, right? It is simple.
तो सबसे पहले क्या करना है, लिमिट फाइंड करने की ट्राई करो। अगर लिमिट मिल जाती है तो वहाँ से पता चल जाएगा फाइनाइट लिमिट आ रही है, मीन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर इनफाइनाइट लिमिट आ रही है तो नेचर चेंज हो सकता है। लेट अस टेक xn इज इक्वल टू -1n इंटू 1 + 1/n, -1n इंटू 1 + 1/n। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस सीक्वेंस। सी, ये सिंपल है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। n ऑड है तो ये क्या आएगा, इस सीक्वेंस को मैं ऐसे देखूंगा। सामने अगर प्रॉब्लम आएगा तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही देखो कि n ऑड है तो आगे माइनस आएगा, 1 + 1/n तो रहेगा ही n ऑड होगा तो, और n इवन है तो आगे प्लस आएगा, ये -1n पॉजिटिव होगा और क्या हो जाएगा 1 + 1/n n इवन। अब अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1/n तो 0 पर जाने वाला है, सो दिस विल गो टू 1, राइट। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n तो 0 पर जाएगा, बट दिस विल गो टू -1, राइट। इट मीन्स इट हैज़ 2 लिमिट पॉइंट्स। इवन टर्म की जो सब सीक्वेंस है 1 पर जाना चाहती है, इवन टर्म्स सभी 1 पर जाना चाहते हैं, ऑड टर्म सभी -1 पर जाना चाहते हैं। यू कैन राइट डाउन रेंज सेट। रेंज सेट इज इजी टू राइट। So if you take -1, what will be -1 + 1/1, then +1 + 1/2, then -1 + 1/3, and so on. Even term will be positive, odd terms will be negative. So what are the set of limit points? You can see here -1 and 1, right? अभी जो हमने देखा, yes. So what is lim sup? इसका सुप्रीमम आएगा 1, इन्फीमम आएगा -1. What is the nature? Its nature is it has more than 1 limit points and it is bounded, so finitely oscillating or oscillating finitely. Limit doesn't exist, right? And odd, say let me write xn is equal to n if n is odd, and 1/n if n is even. इवन टर्म में 1/n करना है, ऑड टर्म को n लिखना है। तो रेंज सेट कैसा आएगा इसका? इसका रेंज सेट आएगा, ऑड के लिए n ही लिखना है, मीन्स 1, इवन के लिए 1/2, देन 3, 1/4, 5 and so on. Range set is not a big deal, you can write it. अगर लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखो, n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो ये कहाँ जाएगा, +∞ पर जाना चाहता है। n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या जाना चाहता है, 0 पर जाना चाहता है। इट मीन्स इट हैज़ 2 लिमिट पॉइंट्स, 1 is 0, 1 is +∞. And when we want to decide nature, then we will take +∞ as a limit point also, right? It has 2 limit points. So this sequence is unbounded. We can see what is the lim sup. Lim sup is +∞. What is lim inf? Lim inf इसमें सबसे छोटा नंबर जो है 0 है। नेचर क्या होगा? दिस इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस हैविंग मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, सो इट इज oscillating infinitely or infinitely oscillating. समझ में आ रहा है? And limit doesn't exist. वेरी इजी, लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना है, कोई बात नहीं। जितना भी पार्ट है सीक्वेंसेस का सब पार्ट में लिख दो, हर एक पार्ट कहाँ जाना चाहता है, हर एक पार्ट की लिमिट फाइंड कर लो। दैट इज़ वेरी मच सिंपल, राइट। आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। यस, n इंटू -1/n, नंबर 6, xn इज इक्वल टू -1/n इंटू n। मीन्स इसमें क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। रेंज सेट आप लिख सकते हो -1 + 2 -3 + 4 and so on. It means, let me write it here, it is -n if n is odd and minus नहीं but +n if n is even. तो इवन टर्म जो है कहाँ जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी करो तो +∞ पर जाएगा एंड दिस विल गो टू -∞. इट मीन्स इट हैज़ 2 लिमिट पॉइंट्स, +∞ एज वेल एज -∞, राइट। सो व्हाट इज लिम सुप? लिम सुप इज +∞, सबसे बड़ा जो है इसमें
लिम इन्फ इज माइनस इन्फिनिटी, जो बड़ा है वो नेचर इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग एंड लिमिट डजंट एग्जिस्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं। सो नंबर 7 में जो सीक्वेंस दी गई है ऐसा कुछ है, xn इज इक्वल टू 2, xn इज इक्वल टू 2 इफ n इज इवन, इवन है तो 2 है, लोएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इफ n इज ऑड। आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। xn इज इक्वल टू लोवेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इन केस इफ n इज ऑड, ऐसी सीक्वेंस दी गई है। लोएस्ट प्राइम फैक्टर मीन्स व्हाट, मीन्स 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 2, तो लोएस्ट प्राइम फैक्टर इसमें सबसे छोटा कौन है 2 है, राइट। तो लोएस्ट प्राइम फैक्टर इज 2। अगर आप से 35 नहीं 35 इंटू 3 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 5 इंटू 3 आएगा ना। तो लोएस्ट प्राइम फैक्टर मीन्स x ऑफ 105 क्या आएगा, इट विल बी 3। n जब ऑड होगा तो आपको क्या लेना है, उसका लोएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है। समझ में आ रहा है। तो ये सीक्वेंस कैसी आएगी कि 1 है तो x1 1 ही आएगा, x2 2 इवन है तो इवन टर्म सभी 2 आ जाएगी, इवन में कुछ सोचना नहीं है। x3 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 ओनली, तो 3 आएगा। 4 इवन है तो 2, 5 ऑलरेडी है प्राइम, 6 इवन है तो 2, 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम, 8 2 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3, सो लोएस्ट प्राइम होगा 3, राइट। देन 10 2 11 इटसेल्फ अ प्राइम, 12 2 x12 x13 is a prime, x14 2 x15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 3, so lowest prime will be 3, right, and so on। समझ में आ रहा है। सी दिस इज नॉट दैट मच इजी। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखिएगा, आप पहले सोचिएगा कि इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आएगा। आप सोचिए क्या आना चाहिए, मीन्स कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट्स होने चाहिए। एक तो दिख रहा है कि 2 जो है इवन टर्म सभी 2 है, तो 2 विल बी रिपीटिंग इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, राइट। तो एक लिमिट पॉइंट तो क्या आएगा 2 आएगा, यस। नाउ माय क्वेश्चन इज 3 लिमिट पॉइंट आएगा। अगर 3 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होता है तो 3 भी आएगा। 3 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होता है, थर्ड टर्म x3 में 3 आया, देन यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3 आया, आगे कहीं पर 3 आएगा, तो 3 आएगा। कहाँ पर आएगा देखो, 3 का अब जितने भी ऑड मल्टीपल लेंगे, 3 का ऑड मल्टीपल 3 इंटू 1, तो उसका लोएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा। 3 इंटू से 2 नहीं, इवन टर्म्स तो सभी 2 ही आनी चाहिए। 3 इंटू 3 में भी 3 आएगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो उसका लोएस्ट प्राइम विल बी 3, राइट। तो 15 टर्म, दिस विल बी x15 का आंसर 3 आएगा। 3 इंटू 7 x21 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि लोएस्ट प्राइम 3 है। 3 का मल्टीपल आगे जितने भी आप बढ़ाते जाओगे लोएस्ट प्राइम विल बी 3, तो 3 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होगा। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज 5 रिपीट होगा इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कि नहीं होगा? तो 5 भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होगा। कैसे? 5 को उससे बड़ा ओड नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 7 मीन्स 35। x35 आप लेने जाओगे तो x35 में क्या होगा, आपका n ओड है 35। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू 7, लोएस्ट प्राइम क्या आया 5, तो x35 विल बी 5। ओके, x45 क्या होगा, x45 नहीं, 5 इंटू 7 देन 5 इंटू 9 नहीं चलेगा, 5 इंटू 11, x55 लोगे 5 इंटू 11, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, क्या आया, समझ में आ रहा है? इसको जितनी बार आपने 5 इंटू 7 इंटू 5 ऐसा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 5 आएगा, xn विल बी 5। 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 5 आएगा, और ऐसे तो इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स, तो 5 विल बी रिपीटिंग इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स। इन फैक्ट
each prime number will be repeating infinitely many times, 5, 7, 11 and so on. This is nothing but set of all prime numbers. This is a very nice sequence. ट्राई करिएगा समझने की कि ऑड टर्म कैसे डिफाइन की गई है. ऑड टर्म का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो लोएस्ट प्राइम आएगा वो आपकी टर्म होगी. x99 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 वट एवर इंटू 11, तो लोएस्ट प्राइम विल बी 3, तो x99 विल बी 3. ऐसे x103 क्या आएगा, x जो प्राइम होगा, अगर xp आपने लिखा xn और n इटसेल्फ इज अ प्राइम, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, वो खुद ही होगा, राइट. तो वो खुद नंबर आएगा. तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. व्हाट इज लिम सूप, इट इज प्लस इंफिनिटी बिकॉज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज अनबाउंडेड अबव. व्हाट इज लिम इन्फ, लिम इन्फ इज 2. So nature, it has more than one limit points and it is unbounded, so nature is oscillating infinitely. Limit doesn't exist. आपको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है, आप वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या आएगा. ओके फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम लाइव प्रॉब्लम सेशन करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं. देन xn इज इक्वल टू n रेज टू 1/n. दिस इज अ वेरी मच फेमिलियर सीरीज सीक्वेंस, यू नो. इफ वी टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी देन इट कन्वर्जेस टू 1, राइट. सो यू कैन राइट इट 1, 2 रेज टू 1/2, 3 का क्यूब रूट, 4 का 4th रूट, 5th का 5th रूट एंड सो ऑन. इट हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट 1. So lim sub be 1, lim inf be 1, nature convergent and its limit is 1. This is very well known. Number 9, xn is equal to say r raised to 1/n. xn is equal to r raised to 1/n. r is any number. So this is again well known. If r modulus of r is less than 1, then it will go to 0. So let me write directly set of limit point. So case 1, if mod r is strictly less than 1, it means r is in between -1 and 1, or say 0 less than r less than 1, because square root, cube root, 4th root ये सब लेना पड़ेगा ना, तो r has to be positive. So if 0 is less or equal r and 1, then it has only one limit point, namely 0. It will go to 0, 0, not set ma 0, this is 0, this is 0. Nature is convergent and converges to 0. nth root of a number 1 से छोटे नंबर का आप जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालते जाओगे तो और छोटा होता जाएगा, राइट, एंड इट विल गो टू 0. ओके, इफ r is equal to 1, then it will be constant sequence 1 raised to 1/n. So it has only one limit point 1. So lim sub be 1, lim inf be 1, nature convergent, limit will be 1. In fact, r greater than 1, then it will be infinity. Okay, it should be r raised to n here. Oh sorry, it should be r raised to n, nth power. Okay, then you can take -1 also here, -1 and 1, if it is in between minus and 1. if r is equal to 1, if r is greater than 1 से बड़ा है, तो उसकी जितनी भी पावर करोगे तो वो कहाँ जाएगा, बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुँचेगी. So it has one limit point plus infinity. So lim sub be plus infinity, lim inf be minus infinity, sorry, plus infinity. Its nature is divergent. It has only one limit point plus infinity. This is the first sequence we are saying, and its limit doesn't exist. Divergent sequence has limit plus infinity, so we say that it doesn't exist. And if r is equal to -1, then this sequence will be -1 raised to n. We have discussed already our first sequence.
right? So in that case it has only two limit points. Lim sup is +1, -1, oscillating finitely. Limit doesn't exist. And if r is strictly less than -1, सी एक ही सीक्वेंस में सब टाइप आ जाता है, सभी टाइप की सीक्वेंसेस आ जाती है. r अगर -1 से छोटा है, सपोज -2 है, -2n, तो क्या होगा? तो दोनों तरफ हो जाएगी. -2n है तो इवन टर्म प्लस इंफिनिटी तरफ की ओर जाएगा, और टर्म माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा. सो इट विल हैव two limit points, +∞ and -∞. Lim sup is +∞, lim inf is -∞. This is oscillating infinitely. Oscillating infinitely and limit doesn't exist. समझ में आया? r⁻n जो सीक्वेंस है, r का डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किया. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बट इट डिपेंड्स ऑन r. इफ r is mod r is less than 1, it will converge to 0. If r is equal to 1, it will converge to 1. If r is greater than 1, it will go to +∞. If r is equal to -1, it is oscillating finitely. If r is less than -1, it is oscillating infinitely. Okay, let's go ahead. Number 10. Next one is number 11. It is n⁻⁴. We know that this is again well known sequence. It converges to 1. Range set will be 1, 2⁻⁴, 3⁻⁴, and so on. Set of limit point is singleton 1. Lim sup is 1, lim inf is 1. Nature is convergent because it is bounded and only one limit point, and so limit is 1. Number 12. Log n upon square root n. Log n upon square root n. What it will be? So if you want to find limit n tends to infinity, this will be, you can use L'Hopital rule, infinity by infinity form, right? Infinity by infinity. So derivative of log n will be 1/n, derivative of this will be something, and you can see its limit is 0. So without using L'Hopital, we will go for this. n की अगर कोई पोलिनोमियल है, log जो है सबसे स्लो फंक्शन है, ये हम याद रखेंगे. log n इसका जो इंक्रीजिंग होगा सबसे स्लो होगा, सबसे कम बढ़ेगा. n 1 से 2 होगा तो पोलिनोमियल, p फॉर पोलिनोमियल, log n से ज्यादा कौन बढ़ेगा? पोलिनोमियल बढ़ेगा, और पोलिनोमियल से ज्यादा बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल. दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग. और एक्सपोनेंशियल भी से भी ज्यादा बढ़ेगा n⁻n टाइप, 1⁻1, 2⁻2, 3⁻3. तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो log n इज ऑल्सो गोइंग टू +∞, पोलिनोमियल इज ऑल्सो गोइंग टू +∞, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर होगा वो फास्ट जाएगा, ये ग्रोइंग फास्ट, ये ग्रोइंग रेशियो है और स्पीड है. इसको हम लिखेंगे स्पीड के हिसाब से याद रखेंगे. सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? n⁻n की. यहाँ e⁻n या a⁻n कोई भी नंबर दिया गया हो, एक्सपोनेंशियल सबसे स्लो कौन जाएगा? log जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको भी इन्फिनिटी पर जाना है, इसको भी इन्फिनिटी पर जाना है, लेकिन ये फास्ट जाने वाला है क्योंकि ये पोलिनोमियल टाइप का है, और जो फास्ट जाएगा उसकी इफेक्ट होगी, ये रह जाएगा. मीन्स के डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा. डिनोमिनेटर अगर एक बार इन्फिनिटी हो गया तो आंसर विल बी 0. सो इट इज ओनली वन लिमिट पॉइंट 0. इट्स लिमिट विल बी 0. लिमिट इज 0, सो इट इज कन्वर्जेंट. लिम सुप इज 0, लिम इन्फ इज 0. अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो लिम सुप भी वही होगा, लिम इन्फ भी वही होगा. ये स्पीड वाला याद रखना है. कौन सा फंक्शन सबसे फास्ट जाएगा? n⁻n टाइप का या x⁻x टाइप का. एज इन्फिनिटी अगर हम जा रहे हैं तो, राइट. ओके, नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स -1/n. नंबर 13. xn is equal to tan inverse -1/n. What will be its range set?
See, whenever n will be odd, it will be tan inverse minus 1, it will be minus pi by 4. So this is equal to, let me write minus pi by 4 if n is odd, and it will be plus pi by 4 whenever n is even. So this is nothing but it has range minus pi by 4 and plus pi by 4. This is the range set. What is the set of limit point? Same, minus pi by 4 plus pi by 4. Lim sup is plus pi by 4, lim inf is minus pi by 4. Nature is oscillating finitely. Limit doesn't exist, right? N sin 1 upon n. Number 14 is n into sin 1 upon n. So what will be the limit? So you can see here that sin 1 upon n is a bounded function. This is a bounded function, right? This is a bounded function. Or you can write like this. This is same as sin 1 upon n divided by 1 upon n. ये जो n है इसको हम ऐसे लिखेंगे. Now this is of the form sin theta by theta, right? And sin theta by theta goes to 1. So this is what? Range set, whatever it is, it has only one limit point. Lim sup, lim if, it is convergent, and 1. You know this. Next one is minus 1 raised to n cube into 2 raised to n. Say n raised to 50 sin 1 upon n raised to 51. N raised to 50 sin 1 upon n raised to 51. क्या आएगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे देख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू साइन, दिस इज 1 अपन n रेस टू 50. n रेस टू 50 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 1 अपन n रेस टू 50. If I want to make sin theta by theta, so let us make here 51 into n, right? So now you can see like this. This is sin theta by theta form. This converges to 1 into 1 by n, right? So this will go to 0. So in general we can write, let me write here, n raised to alpha sin 1 upon n raised to beta, where beta is greater than alpha. If beta is greater than alpha, if alpha is equal to beta, then it will go to 1. If beta is greater than alpha, let us discuss all three cases. Case 1, if alpha is equal to beta, then limit will be 1. So set of limit point will be 1. This type of case, इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे. लिम सुप विल बी 1, 1 कन्वर्जेंट एंड 1. If beta is greater than alpha, see sin theta is behaving something like theta. ऐसा हमने देखा है, sin theta is almost equal to theta. तो sin 1 upon n 51 is almost equal to 1 upon n 51, or sin 1 upon n raised to beta is similar to 1 upon n raised to beta. So this quantity will be similar to n raised to alpha upon n raised to beta. ऐसे देखना है. ये जो है ये s का जैसा नेचर होगा. अगर बीटा ज़्यादा बड़ा हो गया, बीटा ग्रेटर देन h, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, तो इट विल गो टू 0. सो इट हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट 0. लिम सुप भी 0, लिम इन्फ भी 0, एंड नेचर इज कन्वर्जेंट, इट हैज़ लिमिट 0. और अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो गया तो न्यूमरेटर का पावर बढ़ गया. न्यूमरेटर बढ़ गया मीन्स क्या हो गया? इट विल गो टू इन्फिनिटी. सो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इट हैज़ प्लस इन्फिनिटी इज द ओनली लिमिट पॉइंट. लिम सुप भी प्लस इन्फिनिटी, लिम इन भी माइनस इन्फिनिटी. नेचर क्या होगा? इट विल बी डाइवर्जेंट. लिमिट डजंट एग्जिस्ट. समझ में आ रहा है? ऑल केसेस आ गया. n रेस टू अल्फा साइन 1 अपन n रेस टू बीटा टाइप का. ओके, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. दैट इज 51 plus 11 by n. Let me write here. Next, number 16.
xn is equal to, it is defined like this, 51 plus 11 by n, 51 plus 11 by n if n is odd, and 51 minus 1000 by n if n is even. ओके, रेंज सेट का हमें लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो एंड सो ऑन. हमें इंटरेस्ट किस में, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स में. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि n ऑड तभी ये एक्सप्रेशन है, n इवन तभी ये एक्सप्रेशन है. यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो इट विल गो टू प्लस 51. यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो इट विल गो टू प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज दिस विल गो टू 0, दिस विल गो टू 0, both are going to the same limit, so it has only one limit point 51. So lim sup be 51, lim in be 51, nature is convergent and limit is 51, right? Okay, next one is minus 1 raised to, say, n raised to 50,000 upon e raised to n. Number 17, xn is equal to n raised to 50,000 divided by e raised to n. सी, अभी हमने डिस्कस किया था स्पीड. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है n का और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है n का. ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो क्या होगा, दोनों को इन्फिनिटी पर जाना है, दोनों इन्फिनिटी पर जाएगा, लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, एक्सपोनेंशियल की. पॉलिनोमियल से ज़्यादा स्पीड होगी एक्सपोनेंशियल की, तो इसका इफेक्ट होगा, मीन्स डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो रहा है, न्यूमरेटर को भूल जाओ, तो इट विल गो टू 0, 0 0 कन्वर्जेंट एंड 0. ओके, इसको एल हॉस्पिटल के रूल से भी देख सकते हैं, लापिता यूज़ करके. इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू n, पावर आगे आएगा. 50,000 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो न्यूमरेटर कांस्टेंट हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो e रेज़ टू n का e रेज़ टू n ही रहेगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी. न्यूमरेटर में फिक्स टर्म है, डिनोमिनेटर में e रेज़ टू n है, इट विल गो टू 0. वैसे भी जा सकते हो, लेकिन देख के पता चलना चाहिए. यहाँ कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो 50,000 के अलावा 50 लाख पावर क्यों ना हो. स्टार्टिंग में ये टर्म बहुत बड़ी होगी, दिस विल बी वेरी स्मॉल, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दिस विल इंक्रीज, राइट. एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको क्रॉस करके ये चला जाएगा. दिस इज वेरी मच स्पीडी. तो स्पीड के हिसाब से जाना है, हर बार हम ऐसे देख करके नहीं जा सकते. ओके, नेक्स्ट वन इज cos minus 1 raised to n, cos of minus 1 raised to n. What is its range set? थोड़ा सोच के लिखिएगा. It will be cos 1 only, because this is cos is an even function, it is not odd function. So cos of minus 1 will be same as cos of 1, cos of 1 will be same as, so odd term will be cos of minus 1, but it will be same as cos of 1 because cos is an even function, right? So this is a constant sequence, so it has one limit point. So lim sup cos 1, lim inf cos 1, nature convergent and limit cos 1, right? सिंपल है. ये आपको ट्राई करना है. माइनस 1 रेज़ टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, माइनस 1 रेज़ टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. आप ट्राई करिएगा क्या आता है. नेक्स्ट वन, माइनस 1 रेज़ टू n साइन n बाय n, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू ट्राई साइन n अपन n, राइट. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू ट्राई. अब देखिए क्या आता है. और भी कुछ है. ओके, n log 1 plus 1 by n square. Number 21, n log say 1 plus 1 by n. n log 1 plus 1 by n क्या आएगा. तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू n, राइट. वी नो दैट 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू n, ये क्या कहाँ पर कन्वर्स होता है, इट गोज टू e. दिस इज 1 प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी करो तो ये 0 पर जाएगा,
1 प्लस 0 रेस टू इन्फिनिटी, इस टाइप का फॉर्म आएगा 1 प्लस 0 रेस टू इन्फिनिटी। इसका लिमिट ई आता है एंड लॉग ई, सपोज ये ई बेस का लॉग है, सो इट विल कन्वर्ज टू 1 एन लॉग 1 प्लस 1 बाय एन विल कन्वर्ज टू 1, सो इट हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट, lim sup 1, lim inf 1, it is convergent and limit p1, right? Okay, next 22 उसके जैसा ही सिमिलर, n log 1 प्लस 1 अपन n स्क्वायर से, ये सभी NBHM के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर 1 अपन n स्क्वायर है तो यहाँ पर n स्क्वायर होना चाहिए, तो n स्क्वायर करने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ n स्क्वायर log 1 प्लस 1 अपन n स्क्वायर अपन n से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, n स्क्वायर को आगे जाने दो पावर में, तो ये क्या हो गया 1 अपन n स्क्वायर रेस टू n स्क्वायर हो गया, ये n स्क्वायर ऊपर चला गया और ये जो 1 अपन n है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब ये फॉर्म आ गया, यहाँ पर जो है उसका रिवर्स यहाँ पर होना चाहिए, ये लिमिट 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपन एक्स, एक्स टेंस टू 0, ये 0 पर जाना चाहिए, ये इन्फिनिटी पर जाना चाहिए, यहाँ पर जो है उसका रिवर्स यहाँ पर आता है तो ये ई पर जाएगा, राइट? दिस इज वेल नोन रिजल्ट। सो ये 0 पर जाता है, ये इन्फिनिटी पर जाता है, यहाँ पर जो है उसका रिवर्स व्यस्त यहाँ पर है, इनवर्स यहाँ पर है, सो दिस वॉल क्वांटिटी विल गो टू ई, दिस क्वांटिटी इसका लिमिट ई होगा log ई, सो ये जो है क्वांटिटी 1 पर जाना चाहता है और आगे 1 अपन n है जो 0 पर जाना चाहता है, तो एक सीक्वेंस जो 1 पर जाना चाहती है, दूसरी सीक्वेंस जो 0 पर जाना चाहती है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर जाएगा, 0 पर जाएगा, राइट? वी हैव सीन xn कन्वर्जेस टू x, yn कन्वर्जेस टू y, देन xn इंटू yn कन्वर्जेस टू, सो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ओनली 0 0 0 convergent and limit is 0, right? Okay, let us take 32 इसके जैसा ही, ये आपको करना है और देखना है कि यहाँ पर जाएगा। सपोज यहाँ पर n स्क्वायर है और यहाँ पर 1 अपन n है। सी 21 में क्या था, दोनों जगह पर n था, 22 में क्या है, या यू कैन डिस्कस जनरली n रेस टू अल्फा, आपको ये डिस्कस करना है log 1 plus 1 upon n raised to beta. If alpha is equal to beta, then what? If alpha is greater than beta, then what? If alpha is less than beta, then what? ये आपको देखना है, एक n ऊपर चला जाएगा, एक n बाकी रहेगा, राइट? लेट मी राइट डाउन दिस, दिस इज सेम एज n log 1 plus 1 by n raised to n. Now this is convergent, this goes to 1 because this goes to e, log e goes to 1, so this is going to 1, this is going to infinity, so infinity into 1 will go to infinity, so plus infinity, divergent, and limit doesn't exist, right? Set of limit point only plus infinity, simple app, you can generalize this thing, right? Next one is 1 minus इसके जैसा ही है, आपको ट्राई करना है नंबर 24, 1 माइनस 1 अपन n स्क्वायर रेस टू n, ये आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना आए तो मुझे बताना, ना हो तो मैं आई विल हेल्प यू। n साइन 1 प्लस, ये सभी आपके लिए एक्सरसाइज में है, अभी तक जो अब हमने किए उनके जैसे ही है, n इंटू साइन 1 प्लस 1 अपन n स्क्वायर, right? Yes, next one is n square log 1 by n minus 1 raised to n, 15 plus sin n by n. Okay, let me write down this, number 26, minus 1 raised to n into sin n by n, 15 plus sin n by n, sorry, 15 प्लस साइन n अपन n, ये 24, 25, 26 ये आप ट्राई कीजिएगा। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, 1 माइनस यहाँ पर 1 बाय n ले लो, यहाँ पर n स्क्वायर ले लो और देखो क्या होता है, ये भी लिख दो, 1 माइनस 1 बाय n रेस टू n स्क्वायर,
प्लस करके भी देख लेना, माइनस की जगह अगर प्लस है तो क्या होता है, ये आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपको क्या करना है। तो इतने प्रॉब्लम करके आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि कैसे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना है, कैसे लिम सुप फाइंड करना है, कैसे लिम इन फाइंड करना है, कैसे नेचर डिसाइड करना है। हम कहीं भी डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे, ये जो एप्सिलॉन वाला जो हमने किया था वो सब हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से जाएंगे तो टाइम में हम कंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, ये आपको एक्सरसाइज में करना है। आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स देखेंगे।